So once again I am going to teach you active voice and passive voice, which is very much beneficial for each class. The students of class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. These students can learn something from this video. So I am going to start. At first I want to tell you active voice. Active voice means that sentence in which the subject is in lead. It means the subject will be in the starting of sentence. This is active voice. The common formula for it is subject, then verb, then object. This is the common formula of active voice. Then passive voice. In passive voice, the object will be in the lead. It means the object will be in the starting of the sentence. The common formula of passive voice is object plus helping verb of passive voice, then third form of verb, then by, then subject. So by this common formula you can change an active voice into passive voice. Now you can see that in passive voice there is one special changing, that is the changing in helping verb. This helping verb will be according to passive voice. So I am going to tell you, I am going to give you one chart which tells you how to change the verb or helping verb of active voice into passive voice. So here is it. There is do, does, are first form of verb. Then it will be changed into is and are. If there is am, are in active voice, then it will be changed into is, am, are plus being. If there is has or have or had, then in passive voice there will be has, had or had, and just after that been. If there is did or second form of verb in active voice, then it will be changed into was or were. This helping verb which I am writing in passive voice side, it will be written according to the object. Suppose that the object is in plural form, then you will write are, have or were. Now next, if in active voice there is was or were, then it will be changed into was or were plus been. Now if in active voice there is the use of will or shall, could or should, then there are so many models, so I am going to tell more. May, can, might, could. So in passive voice all of these will have been just after it. Now the same thing
आई एम गोइंग टू टेल इन हिंदी। अगर एक्टिव वॉइस में डू डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे और ऑब्जेक्ट पहले लिख करके फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज, एम, आर जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा उसको लगाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये सब में लगेगा, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे। सेम वही बात, अगर इज एम आर है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इनमें से कोई एक, फिर ये, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही एक्टिव वॉइस में अगर हम ये पाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन मॉडल्स अगर कोई आता है तो मॉडल्स आने की अवस्था में वो मॉडल्स होगा और उसके साथ हम बी लगा देंगे। अभी और भी है मॉडल्स, उनको भी देख लेते हैं। मस्ट, और टू, नीड, इनमें से कोई आता है तो भी हम इनको लगा के उसके बाद बी लगाते हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चेंजिंग होती है हेल्पिंग वर्ब की होती है, तो हम इस चार्ट से पता कर लेंगे और फिर फॉर्मूला लगा करके पैसिव वॉइस बनाएंगे। फॉर्मूला हर टेंस का, हर सेंटेंस का अलग अलग होगा, उसको देखते हैं। जैसे ये जो फॉर्मूला मैंने दिया ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। तीसरा है यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप अगर क्वेश्चन आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि पैसिव वॉइस के चार्ट की तरफ का होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के चार्ट का होगा। फिर लास्ट एक और होता है WH टाइप क्वेश्चन। अगर WH टाइप क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में आते हैं तो सबसे पहले हम WH टाइप क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की चार्ट का होगा, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। इनके बाद इंपरेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस याद रखना है इंपरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के आते हैं, या तो एडवाइज होता है, या रिक्वेस्ट होता है, या ऑर्डर होता है। तो जिस मूड में इंपरेटिव सेंटेंस होगा उस मूड के अनुसार पैसिव वॉइस बनाते समय हम यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड लगा देते हैं। इसके बाद टू लगाते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि एक्टिव वॉइस में दिया होता है उसको लगा करके सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये बस थोड़ी सी चेंजिंग करके हम बड़े आराम से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। आई होप दैट these all things will be very much helpful for you. Take full enjoyment of your summer vacation, but try to learn active voice and passive voice with a very delicate mood, with a very joyful mood. Thank you.